Okay, I just want to confirm 2019 सप्ली का पेपर नजर आ रहा है ना? Okay, right. Let's get started in 2 minutes. Okay. Oops. Okie dokie. All right. So supply 2019 का पेपर है ये, ठीक है? Question number 1. A 28-year-old gravid to para 0+1 is a known hypertensive at 18 weeks of gestation. She is worried as her lab reports are showing HP, which has fallen from 12 to 10. No symptoms of anemia, red cell count is normal. Her blood pressure also remains normal, so she left antihypertensive medication. Why is her HP level why has her HP level fallen as she has no symptoms of anemia? B, why is her blood pressure normal during early pregnancy? And C, if her blood pressure rises after the second trimester, which medications will you prescribe her? Okay, somebody has already messaged. Yes, hemodilution. We already know कि pregnancy के अंदर there's hemodilution जिसकी वजह से मतलब hemodilution भी हो रही है, plasma level भी आपका increase हो रहा है और आपके RBCs भी ज़्यादा हो रहे हैं. लेकिन जो आपकी hemodilution है, it is more than the increase in your RBCs. तो उसका सब कुछ मतलब उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ब्लड में इज सफिशिएंट, तो इसलिए उसको सिम्टम्स ऑफ एनीमिया नहीं है, बट उसके एचबी बज़ाहिर कम नजर आ रहा है. ठीक है. ऑलराइट. बी के अंदर ब्लड प्रेशर रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग. हाँ जी, उसका ब्लड प्रेशर अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल क्यों है? वैसे तो शी इज अ नॉन हाइपरटेंसिव, तो अब उसका ब्लड प्रेशर ऐसे. ओके, somebody said decrease peripheral resistance, so there will be decreased blood pressure. Absolutely correct. ठीक है, हमने ऑलरेडी सीवीएस के चेंजेस कर चुके हैं. डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा. हाँ जी. एंड देन सी के अंदर लिबिटोल. Yeah. So there's a bunch of medications which you can prescribe a pregnant lady. The first line is labetalol, and uske ilawa we have some other options as well. We can give methyl dopa, which is a centrally acting drug, और nifedipine भी दे सकते हैं जो calcium channel blocker है, लेकिन इसके side effects ज़्यादा होते हैं, तो we prefer labetalol as the first line agent. ठीक है ना? So this was a pretty nice question related to the physiology of pregnancy. Okay. Question number 2. A gravid to para 1 A0 has come to the antenatal clinic at 10 weeks of pregnancy for booking. You evaluate her and give her booking investigations. What is the aim of antenatal care? And B, what investigations will you give at her booking visit? I remember when we were studying OBS for the first time, हमने बहुत clearly इसके aims देखे थे. So can someone tell me just off the top of your head, what should be the aim of antenatal care? Just make it up as you go. I'm pretty sure आप लोग इसको figure out कर सकते हैं. Yep. Okay. Optimize the outcome of pregnancy for both the mother and the baby. Yes. ठीक है, to detect or prevent any factors that will adversely affect the health of the mother and the baby. Yes. ठीक है. You can provide advice, reassurance, and education and support for the woman and her family. You can deal with the minor ailments of pregnancy, Hanji, and you can provide general health screening as well. So these are the points that are written in your 10 teachers in your antenatal care wala chapter. ठीक है, तो what investigations will you give at her booking visit? Hanji, ये बताएं, ये बहुत ज़रूरी है.
Come on guys, CBC तो कोई लिख के भेज दे कम से कम. It's like the basic that you can start with. Okay, nice. Yeah, full blood count, midstream urine sample लेके उसका asymptomatic bacteriuria चेक करते हैं. full blood count हम लोग anemia rule out कर सकते हैं, platelets का कोई issue rule out कर सकते हैं, WBC से हमें कोई infection का पता चलेगा, blood grouping आपने करनी है. हाँ जी. फिर जो important, हाँ, हीमोग्लोबिनोपैथीज को आपने रूल आउट करना है. ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? कोएगुलेशन स्क्रीन. ठीक है ना? हाँ जी. डेटिंग स्कैन करना होता है, अल्ट्रासाउंड. ठीक है, पहला अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा कि व्हाट इज द हाउ, मतलब डिलीवरी जो है. अच्छा मुझे पता है टर्म डिलीवरी किस किस मंथ को कहते हैं? बी स्पेसिफिक. ओके. और अगर ये मैं वीक्स में हो. ओके, सो somebody else says 9 month. हाँ ठीक है, रफली ये ठीक है. वीक्स के अंदर somebody said 37, somebody said 38. अच्छा, जो हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा वीक होता है? 37, 38, 39, 40, कौन सा वीक है वो जो ईडीडी कैलकुलेट होता है? हाँ, वो 40 है. ठीक है, सो डोंट मिक्स दिस अप. टर्म इज 37 to 40 वीक्स. ठीक है, रफली हम 9 मंथ्स कंसिडर करते हैं. Sorry, 37 to 42 weeks का range is term. Excuse me, you're right. But thank you for correcting me. 37 to 42 weeks का range is term, और 37 to 40 is what we prefer. ठीक है, और after that हम उसको कहते हैं, मतलब जो estimated date of delivery है वो है 40, और 40 से 42 हम उसको कहते हैं post date. Why I'm clearing this out is because a lot of people, they tend to mix this up, so I just wanted to point that out. Okay, let's get back to our booking investigations. हमने full blood count कह दिया है, midstream urine कह दिया है, blood grouping और antibody screening. उसके अलावा you can do your coagulation profile और आपको hemoglobinopathies का पता चल जाएगा. Infections कौन कौन सी देखनी होती हैं? आपने hepatitis B, HIV देखनी है, साथ में syphilis और rubella भी कर सकते हैं. ठीक है, and then dating scan के ऊपर. अच्छा, डेटिंग स्कैन के ऊपर आपको एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी पता चल गई. उसके अलावा कैन यू स्क्रीन फॉर समथिंग ऑन इट? कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो उस पे स्क्रीन भी हो जाती हैं डेटिंग स्कैन के ऊपर? डाउन्स, हाँ, ऑल द ट्राइसेमीज. ठीक है, डाउन्स स्पेशली, फिर ट्राइसेमी 18, ट्राइसेमी 13. हाँ, नकल ट्रांसलूसेंसी उसके लिए चेक करते हैं, उससे वो स्क्रीन हो जाता है. ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी पता चल जाते हैं. राइट. ओ या डायकोरियोनिसिटी भी पता चल जाती है. Diagnosis of defects, viability. Yes. ठीक है, so there's a bunch of stuff that you can do on a dating scan. तो if ever आपको आ जाए ना कि dating scan क्या पता चलता है, apart from the estimated date of delivery, आपने ये दूसरी चीजें भी याद रखनी है. ठीक है. Okay, question number 3. A 25-year-old in her second pregnancy attends the antenatal clinic for review at 36 weeks of gestation. Her dates were confirmed by dating scan at 12 weeks. You assess that her fundal height is 30 centimeters and she is complaining about decreased fetal movements. You are concerned that the fetus is small for gestational age, and you advise an ultrasound. Ultrasound findings suggest fetal head and abdominal circumference are less than 5th centile for gestational age, and there is reduced Leica. Which ultrasound findings support your diagnosis of small for gestational age? Well, that's a pretty straightforward question, A. Here, B, how will you assess further fetal well-being? And C, how will you manage her? Okay, 36 weeks of gestation पे हुआ ये. Yeah, estimated weight less than 5th. Estimated weight, you can say उसका head circumference कम था, उसका abdominal circumference less than 5th centile था. Both of these are indicative. And then reduced Leica. Oligohydramnios is also indicative of fetal growth restriction. उसकी fundal height भी कम है. ठीक है, बट उन्होंने अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स का कहा है. फंडल हाइट कम है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि देयर इज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. ठीक है,
That's just as an observation. लेकिन because they're asking ultrasound findings, तो आप उसका head circumference, abdominal circumference less than 5th centile दोनों ही कम है, और उसका reduced Likert भी है, ठीक है, और reduced movements also shows IUGR. Yes. ठीक है. How will you assess further? आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? 36 वीक्स पे. हाँ, नाइस. ठीक है, आपने सीटीजी करनी है उसकी. सीटीजी से आपने बायोफिजिकल प्रोफाइल वाली सारी चीजें जो हैं वो कर लेनी है, फीटल मूवमेंट, स्टोन ब्रीदिंग, वो सब. ठीक है. फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं प्लेसेंटा की वेसल्स का, फीचर्स की वेसल्स का, उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है इफ देयर इज एनी इशू, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो ये आपने सीटीजी और ये डॉपलर करा लेना है. ओके, हाउ विल यू मैनेज हर? हाँ जी. fetal growth restriction है, 36 weeks पे वो present की है. She is like a week away from 37, which is term. तो फिलहाल आप क्या करेंगे उसके लिए? एक तो we would like to because उसका इतना कम है, तो you can admit the patient. ठीक है, you can admit the patient, उसको bed rest कहें, उसको prophylactic steroid दे सकते हैं. Initially what you do is you recommend bed rest and you good nutrition की आप वो ख्याल रखते हैं. ठीक है, advise her good nutrition, but at this point she's just a week away, right? So it may obviously make some difference, but अभी if she had presented early in pregnancy, that's something that we were really stressed on. तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने उसकी डिलीवरी प्लान करनी है. ठीक है, एडमिट करके बेड रेस्ट करें, उसकी सप्लीमेंटेशंस को ठीक करें, न्यूट्रिशन अच्छा कर लें, हाइड्रेशन दें. उसके बाद जो है आपने उसकी सारा बायोफिजिकल प्रोफाइल कैलकुलेट करनी है, सीटीजी मॉनिटरिंग करनी है. ठीक है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उसको रेकमेंड करना है कि वो लेटे. यस, करेक्ट. फिर आपने उसकी करनी है प्लान हर डिलीवरी, एंड फॉर दैट यू कैन गिव हर स्टेरॉइड प्रोफाइलैक्सिस एज वेल, एंड यू कैन जस्ट उसके बाद जस्ट प्लान हर डिलीवरी पे लिख दें कि ये एसवीडी हो सकता है. ठीक है, that's the basic management. So what you do, you admit, you give bed rest, left lateral position, good nutrition, you identify the cause of the fetal growth restriction and try to treat that cause. All right, somebody has said steroids before 34 देने होते हैं. She is at 36. That is correct. Okay. Yeah, excuse me. You're right. 34 से पहले देते हैं steroid. We don't. अभी term पे जब आ जाएगी तो हमें steroid देने की जरूरत नहीं होगी. Yeah. Okay, cancel that steroid point. Like lose it from your brains. ठीक है. Where was I? I was trying to give it to you in point form. Okay, and then after that you plan her delivery. उसके अंदर आपने CTG करवा के biophysical profile calculate करके रखनी है. ठीक है. That was the basic management of this. Okay. Okay, there seems to be some okay, so people are sending messages me that you can give steroids. You can also decide to not give steroids. I'll have to get back to you guys on this. Okay. Okay. 4. A primary gravida has just delivered a baby. You are waiting for the placenta to deliver. What signs will you observe for placental separation, and how will you actively manage the 3rd stage of labor? Yes. Anji, what are the signs of placental separation? Umbilical cord को क्या होगा? Cord यूं लगेगी कि वो lengthen हो गई है. ठीक है, जब obviously अंदर से placenta उतर रही है तो you will feel like अभी like कि cord जो है it is lengthening, so there will be apparent lengthening of the cord. फिर placenta जब उतरेगी तो there will be a small gush of blood from the placental bed. By the way, page 212 पे ना table/box बना हुआ है. ठीक है. उसके अलावा the uterine fundus will rise above the umbilicus. ठीक है, और uterus की जो contraction है वो एक
आपको मतलब जब आप एब्डोमेन पे फील करेंगे तो हार्ड ग्लोबुलर यूट्रस आपको फील होगा पैल्पेशन पे, ठीक है, बिकॉज इट इज कंट्रैक्टिंग टू गेट रिड ऑफ दैट प्लेसेंटा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स बनते हैं। पहला है apparent lengthening of the cord. Number 2, small gush of blood from placental bed. Number 3, rising of the uterine fundus above the umbilicus. And number 4, uterine contraction resulting in firm globular feel on palpation. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपने इस तरह लिखने हैं। फिर B के ऊपर we have how will you actively manage the third stage of labor. एक्टिव मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब ये आप दे सकते हैं जब बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया हो, या फिर बेबी जो है पूरा डिलीवर, मतलब अभी अभी डिलीवर हुआ तो आपने फॉरन ऑक्सीटोसिन दे देना है। और अर्ली क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ कॉर्ड करनी है आपने। उसके बाद आपने कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन करनी है। आपने कैसे करना है, ट्रैक्शन भी देनी है एंड यू हैव टू होल्ड लाइक विद, फॉर एग्जांपल विद योर राइट हैंड इफ यू आर गिविंग ट्रैक्शन, आपने लेफ्ट हैंड से जो यूट्रस का फंडस वाला एरिया है ना उसको ऐसे होल्ड करना है फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। ज्यादा जोर से नहीं पुल करना, अदरवाइज यू हैव द रिस्क ऑफ कॉजिंग यूट्राइन इन्वर्जन, ठीक है। You don't want to pull the uterus out, you just want to help the cord, ठीक है। You can also you also give upward massage on the uterus to help it contract, just to encourage it to contract. So that's the active management. ये भी पेज 212 पे बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट में भी यही लिखा है, ठीक है। Okay, an 18-year-old primary gravid at 35 weeks of gestation has reported in the emergency with sudden onset of tonic-clonic fits since morning. Blood pressure 190 by 110 है. Describe initial management of patient and B, how and when will you deliver? अच्छा, आप लोग पहले ये बताएं ये है क्या चीज, क्योंकि मैनेजमेंट तो तभी देंगे ना जब पता होगा क्या है। हाँ जी, वेरी नाइस, ठीक है। दिस इज एक्लैम्पसिया, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और उसको टॉनिक क्लॉनिक फिट्स हैं। उन्होंने अभी प्रोटीनूरिया नहीं बताया, बट उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स हो रहे हैं, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट आप IV MgSO4 देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट आपने देनी है IV। फिर आपने फॉरन उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, ये भी आप लेबिटालॉल देते हैं इसके लिए, ठीक है। ये सब आपने IV देना है। एडमिट कर लेना फॉरन, मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 4 times a day, मोर देन एटलीस्ट 4 times a day आपने मॉनिटर करना ब्लड प्रेशर। तो इनिशियली क्या करना है, एक तो आपने वो फिट्स रोकने और आपने उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना है। Somebody has said hydralazine IV for blood pressure. A second, let me just check that. Okay. Ward में बताया था मैम ने, somebody has said. Okay, let me just confirm that as well. Just give me a minute. Hypertension. Okay, चलो okay. So what I studied, you can give IV labetalol as well, and you can give IV hydralazine as well, ठीक है। And this was what was written in the book, ठीक है। And practically जिसने कहा कि वार्ड में सर ने बताया था, शायद हमारी सेटिंग में IV hydralazine यूज करते हैं, so that's why they told you that, ठीक है। Somebody is saying labetalol is only in oral preparations. No, actually I can actually give you the reference from the book for that. Page number 138. Labetalol is an alpha blocking and beta blocking agent. It can also be given orally and IV, and it is the first drug of choice in most national guidelines. ठीक है, खैर, let's move forward.
B, how and when will you deliver her? Yes, if somebody presents with eclampsia, how will we deliver? Yes. And when? Yeah, deliver as soon as possible, right? She's 35 weeks. What are the chances for the baby? Yeah, I agree. Um, try to give the steroid prophylaxis best as you can. आपने fits control कर लिए, आपने आपने फिट्स कंट्रोल कर लिया, आपने बीपी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको डिलीवर करना है बेबी को वाया सी सेक्शन एंड ट्राई टू गिव स्टेरॉइड प्रोफाइलैक्सिस इन द मिडल, just buy yourself some time, okay, with that. Somebody said IV magnesium sulfate is drug of choice for eclampsia. Yes, it is, because you have to control those fits. ठीक है. I hope that we've had a good discussion about this question. I see that there seems to be a lot of discrepancy with the treatment of eclampsia. I hope it's clear now. Somebody said management repeat kar dein. Okay. देखो जो eclampsia की जो convulsions के लिए जब हम मैनेजमेंट करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस वो मैग्नीशियम सल्फेट है नंबर 1, ठीक है। अब आपने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया और फिर आपने उसका ब्लड प्रेशर भी तो कंट्रोल करना है ना, आपने उसको एडमिट कर लेना है, उसका ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, उसकी प्लान करनी है क्या कहते हैं डिलीवरी, ठीक है। एक सेकंड, somebody has sent me management points for eclampsia. Okay, अच्छा थैंक यू, ये सर सुहेल के नोट्स हैं। they've written पहले ABC करें, call for help, control of fits by magnesium sulfate IV देते हैं, then control of blood pressure you can give IV hydralazine for that, book के हिसाब से you can also give IV labetalol, then you have to maintain the acid base balance by using Ringer's lactate, ठीक है। deliver the fetus within 4 to 6 hours and never wait longer than that, okay. Bishop scoring करें, Bishop scoring पे अगर less than 5 आ रहा तो it's a C-section, if it's more than 5 तो you do an SVD within 4 to 5 hours. Okay, thank you for these, it's very comprehensive, ये मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड करवा दूंगी, ठीक है। चलो, let's move forward with this. Okay, question number. Okay, there's a very special question. Somebody said, अब IV में क्या लिखें? स्लैश डाल के लिख दो, IV hydralazine / IV labetalol. कोई मसला नहीं है, they're not gonna judge you for using both. Question number 6. 22-year-old woman is admitted in the labor ward at 39 plus 2 weeks gestation in her second pregnancy. She had previous normal vaginal delivery. She is having regular painful uterine contraction and on examination cervix is 4 centimeters dilated. Her membranes are intact. Midwife is intermittently auscultating fetal heart, which is normal. Repeat vaginal examination after 4 hours shows that cervical dilation is 5 centimeter, 50% effaced है, vertex -3 पे है. Next step क्या करेंगे? Vaginal examination 2 hours के बाद same cervical dilation पे है, uterine contractions 2 to 3 हो रही हैं 10 मिनट में, CTG normal है. Further क्या करेंगे? Here, see, after 2 hours of augmentation of labor, her cervical dilation is 6 centimeter, thick meconium hai, fetal head में excessive molding है, anterior fontanelle is palpable, CTG late decelerations आ रही हैं, manage further कैसे करेंगे, cause of failure of progress क्या है? After reading the whole question, we already know that there is failure of progress, ठीक है? तो so what happens is
इट सीम्स एज दो उसका लेटेंट फेज ऑफ लेबर जो है 4 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गया था, अब उसका 5 सेंटीमीटर डायलेट है लेकिन 50% इफेस्ड है. दिस शुड हैव बीन इफेस्ड 100%. लेटेंट फेज कब होता है? जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन होती है और कंप्लीटली इफेस हो जाती है सर्विक्स. ठीक है, वर्टेक्स -3 पे है. दिस इज वेरी हाई. अभी इट शुडंट हैव बीन एट -3 स्टेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करें एक्सेलरेट करने के लिए लेबर? इतना हाई अगर है तो व्हाट डू वी एनकरेज? और उसका इट सीम्स एज दो उसका भी लेटेंट फेज सही से पूरा नहीं हुआ. यू नो दैट द सर्विक्स नीड्स टू बी फेस 100%. तो अभी हम उसको क्या कहेंगे? We would encourage her to stand upright. ठीक है, एक तो या ऑफर हाइड्रेशन, ऑफर पेन रिलीफ. अभी वो खुद ही पानी पी भी सकती है, नेसेसरी नहीं है कि हम उसको आईवी सब कुछ लगाएं. ठीक है, लेकिन पेन रिलीफ हम उसको ऑफर कर सकते हैं, उसको रिहाइड्रेशन. ठीक है, और स्टैंड अपराइट एंड मूव अराउंड. ठीक है, जिसने CLR लिया हुआ है दे नो के जब लेबर इस तरह नहीं हो रहा तो वो कहते हैं कि आप खड़े होके ना आप चलें, या फिर वो पोजीशन आप लेइंग डाउन पोजीशन से हट जाएं, आप स्टैंड अप. ठीक है, and then obviously you offer hydration and you offer pain relief as well. ठीक है, despite moving around and despite all of that, उसका सेम सर्विकल डायलेशन था. उन्होंने इफेसमेंट का नहीं बताया, डायलेशन. और उसकी कंट्रैक्शंस अब 2 to 3 in 10 minutes हो रही हैं. हमारी आइडियल कंट्रैक्शन इज लाइक 3 to 5 in 10 minutes. तो 2 to 3 is slightly less. तो we can already tell कि जो uterine contractions हैं they are weak at this point. तो now what would we do? ठीक है, we can go for a few things over here. एक तो we can augment the labor. ठीक है, थोड़ा सा क्लू आपको सी से ही मिल रहा है. we can augment the labor. We can also go for artificial rupture of membranes because उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि उसकी membranes अभी तक intact हैं. ठीक है, उसका शुक्र है अभी CTG नॉर्मल है, which means the kid is not going through distress. उसके अलावा what could be a cause of weak uterine contractions is ketosis. ठीक है, मे बी उसके मेटाबोलाइट्स मेटाबॉलिक कंडीशन सही नहीं है, तो टेकर ABGs और उसको रिहाइड्रेट करें, और अगर उसका कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट है तो उसको वो सही करें. ठीक है, so these are the some of the things that you can do. You can augment the labor, you can do artificial rupture of membranes, and you can correct any imbalance that she has जिसकी वजह से weak uterine contraction या less हो रही है. ठीक है, ओके, अब उन्होंने बता दिया ऑगमेंट कर दिया है, और फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, थिक मिक्योनियम है और एक्सेसिव मोल्डिंग है और एंटीरियर फॉन्टेनल पैल्पेबल है. हमारे पास पैल्पेबल होनी चाहिए पोस्टीरियर फॉन्टेनल, वो नॉर्मल है. एंटीरियर जो पैल्पेबल हो तो उस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? हाँ जी. और जब नोज वगैरह पैल्पेबल हो तो उस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? और अगर शोल्डर या हैंड पैल्पेबल हो तो उस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? ये बताएं. पहले आप वो बताएं कि एंटीरियर फॉन्टेनल अगर पैल्पेबल है तो क्या. ए पार्ट का क्या आंसर है? ऑफर रिहाइड्रेशन, ऑफर एनाल्जेसिया एंड मोबिलिटी को आप करें, रीअश्योर करें और उससे कहें कि आप चलते फिरते रहें. ठीक है, आप अपनी पोजीशन चेंज करें, डोंट ले डाउन. ओके, बी का हो गया. ओके, एंटीरियर फॉन्टेनल हमें ब्रो प्रेजेंटेशन में. ठीक है, तो अगर आपकी ब्राउ प्रेजेंटेशन है तो इट विल बी एंटीरियर फॉन्टेनल. जब नोज वगैरह आएगी ना आपको फील, तो वो फेस प्रेजेंटेशन है. बेस बोथ में हेड जो है वो डिफ्लेक्स्ड है. एंटीरियर फॉन्टेनल. ओके, और फुटलिंग ब्रीच में आपको फुट फील होता है, हैंड आपका तब आता है, हैंड या शोल्डर, जब आपकी शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, और नॉर्मली हमें पोस्टीरियर फॉन्टेनल फील होना चाहिए. ऑक्सीपिट पोस्टीरियर में या फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है या ब्राउ प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो दैट्स नॉट स्पेसिफिक. अगर ब्राउ है तो आपको एंटीरियर फॉन्टेनल फील होगा, और अगर फेस है तो आपको नोज वगैरह ये सब फेस की जो सारी चीजें वो फील होंगी. हैंड एंड शोल्डर एंड ट्रांसवर्स, या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, उसको आई थिंक हम शोल्डर प्रेजेंटेशन कहते हैं. लेट मी जस्ट कंफर्म दैट एज वेल. मैं पेज नंबर भी आप लोगों को बता देती हूँ, ये सारी चीजें ना उसी पे लिखी हुई हैं अब नॉर्मल लेवल में. प्लेस ऑफ बर्थ, पेन रिलीफ.
225 के ऊपर लिखा हुआ है सब, ठीक है। पेज 225 पे सारी मैल प्रेजेंटेशन लिखी हुई है और साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या फील होगा ऑन पीवी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया ब्राउ प्रेजेंटेशन है और लेट डिसेलरेशन है, मतलब लेट डिसेलरेशन टाइप 2 डिसेलरेशन को भी कहते हैं। दिस इज नॉट गुड। फीटस जो डिस्ट्रेस में, और फीटस ऑलरेडी में पता है थिक मेकोनियम की वजह से और एक्सेसिव मोल्डिंग से पता चल गया। अब हाउ वुड यू मैनेज फर्दर? क्या ब्राउ प्रेजेंटेशन हम किसी तरह एसवीडी कर सकते हैं इसका? इज इट पॉसिबल? नहीं, फेस प्रेजेंटेशन आ सकती है ऑक्सीपिट पोस्टीरियर में। I'll confirm that for you, but अगर ज़्यादा वो हो जाए, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स पे nobody is telling me. Yeah, thank you. Brow presentation is delivered by C-section. ठीक है, there's a lot of other questions as well. I'll try to get to them. Brow presentation is only delivered by C-section. आप इस point पे आप forceps delivery या okay, thank you. Sorry, वो इतने सारे questions आए थे ना, I didn't see your answer before. Absolutely correct. इसकी SVD नहीं हो सकती, forceps डाल के भी नहीं हो सकती. You have to do C-section. ठीक है. तो how would you manage further? Further में वही सब अब C-section के लिए preparation करेंगे सारी. And what is the cause of failure of progress? Is brow presentation. It's malpresentation. ठीक है. Okay, and now I'll get to the other question. Somebody has said, okay, please describe molding and capit. Okay. Let me get a pen. Where's the pen? Okay, so capit is when this is the baby's head, और इस तरह जो है एक swelling edematous thing बन जाती है बेबी के हेड पे, ठीक है। तो this is called a capit. And molding is जो हमारी bones of the skull है ना, उन्होंने ये इस तरह जैसे सेपरेट पड़ी हैं, अभी वो सूचर नहीं एक दूसरे के साथ बना, तो यू मोल्डिंग मतलब ऐसे हेड की जो बोन्स है ना वो ओवरलैप करती हैं। तो एक्सेसिव मोल्डिंग और एक्सेसिव कैपिट का ये मतलब है कि जो बच्चे का हेड है ना वो वहां स्टक हो गया है, ठीक है, if that makes any sense. Okay, the next question is ऑक्सीपुट एंटीरियर में फेस और ब्राउ पाल्पेबल होगा, प्रेजेंटेशन रिपीट कर दें। मैंने मैल प्रेजेंटेशंस का बताया था। ऑक्सीपुट एंटीरियर हो और हेड फ्लेक्स्ड हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मिलना चाहिए पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पीवी एग्जामिनेशन पे ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। अगर मैल प्रेजेंटेशन होना तो इसके अंदर वी कैन हैव आइदर अ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच के अंदर स्पेशली फुटलिंग ब्रीच के ऊपर आपको फुट फील होता है। फिर फेस प्रेजेंटेशन है, कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाती है फीटल हेड की, ठीक है। इसके अंदर आपको आईज और नोज और माउथ वगैरह मिलते हैं विजाइन एग्जामिनेशन पे। फिर हमारे पास है ब्राउ प्रेजेंटेशन। ब्राउ प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको एंटीरियर फॉन्टेनल मिलती है, उसके साथ यू कैन ऑल्सो हैव लाइक सुपरऑर्बिटल रिजेस और नोज तक भी थोड़ा बहुत फील हो सकता है, बट एंटीरियर फॉन्टेनल मेन आपको फील होती है, ठीक है। फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर जिसको हम ट्रांसवर्स या ओब्लिक लाई भी कहते हैं, इसके अंदर आपको या जैसे शोल्डर फील होगा या हैंड भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन गेट इन योर मैल प्रेजेंटेशंस। ओके, अब पेज 225 आप लोग रीड कर लें, आपको अच्छा वो हो जाएगा। उसके अलावा ओके, इसके बाद एट द एंड मैं बाकी के क्वेश्चंस को एड्रेस करती हूँ। नो वॉइस, इज देयर वॉइस? सॉरी, ऑडियो है सबके पास? ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question है, an obese 20-year-old had emergency C-section due to failed induction for preeclampsia. She is given prophylactic antibiotic at the time of surgery. She is discharged home 2 days later feeling well. 9 days later, she was admitted in emergency with complaint of low-grade pyrexia. 37 to 37.5. On examination, chest is normal, uterus is palpable just above pelvic brim, and her legs are swollen, but calf is also tender. Both legs are swollen, calf is also tender. Okay. What do you guys think this is? The reason I will not say sepsis is because uska temperature काफी कम है. Yeah. Yes, DVT hai. Do you think she could have a pulmonary embolus? Why not? Why do you not think she could have a pulmonary embolus? Chest normal hai. No shortness of breath. Yes. अगर इसका low grade pyrexia के साथ shortness of breath होता तो we would think about pulmonary embolus as well. ठीक है, उन्होंने बता दिया कि left calf is swollen और उससे हमारा mind जा रहा है DVT तक. ठीक है, डीवीटी के साथ साथ आपने जब भी डीवीटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके साथ आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म जरूर सोचना है. ठीक है, डोंट मिस दैट आउट. कभी कभार क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है लेकिन आप लोग डीवीटी कर देते हैं. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर. वैसे क्लिनिकली हम लोग सोच सकते हैं कि अब उसको डीवीटी तो हो गया तो उसका हाई रिस्क है ऑफ डेवलपिंग अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एज वेल. ठीक है ना, तो जब हमने इसकी ट्रीटमेंट भी करनी होगी तो उसके अंदर हमने ये माइंड में रखना है. डायग्नोसिस में यू कैन राइट डीवीटी एंड बी के अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या प्रेजेंट है, इस लेडी में क्या रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद हम सारे रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो डीवीटी करवा सकते हैं. इस लेडी में क्या है, या शी हैड प्रीक्लैम्सिया, व्हाट एल्स, she is obese, हाँ C-section. ठीक है, she had a C-section. Anytime anyone has a surgery, it is a risk for that. She is obese, she had a C-section, उसको preeclampsia भी था. अच्छा, failed induction थी तो उसका लेबर मतलब प्रोलॉन्ग हो गया होगा एट दैट पॉइंट. ठीक है, एंड प्रोफाइलैक्टिक दिया था, एंटीबायोटिक दी थी, और उन्होंने कुछ ये नहीं लिखा कि प्रोफाइलैक्टिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या वारफरिन या कुछ इस तरह दिया था कि नहीं, which they should have given. ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये बी इसका है. 7B का रिस्क फैक्टर्स क्या थे, इसके हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिए हैं. नाउ पेज नंबर 86 है शायद, या पेज नंबर 86 पे देयर इज दिस ह्यूज लाइक फ्लो चार्ट थिंग. ठीक है, उसके ऊपर सारे रिस्क फैक्टर्स आपके पास लिखे हुए हैं. आई एम जस्ट गोना गो ओवर द मेन वंस. ठीक है, एज मोर देन 35 years. ठीक है, ओबेसिटी मोर देन 30, मोर देन 40, मतलब बेसिकली ओबेस अगर हो, फिर पैरिटी मोर देन 3. उसके अलावा कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो, जैसे कि इसके अंदर सी सेक्शन हुआ है, फिर वो स्मोकर हो, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, या कोई प्रीवियस वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है. ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं जो जो आपको प्रीडिस्पोज कर सकती हैं. यू कैन गो अहेड एंड मेमोराइज ऑल ऑफ देम इफ यू वांट. रिस्क फैक्टर का टेबल दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आप पूरा कर सकते हैं इफ यू वांट, बट मैंने मेन आपको बता दिए हैं. See what specific investigations will you do and what treatment will you plan for her. Okay, somebody said ultrasound to confirm the DVT. What kind of ultrasound? To say Doppler. ठीक है. You can do a compression ultrasound, you can do a Doppler ultrasound. उसके अलावा venography कर सकते हैं आप. ठीक है, फ्लो देखने के लिए. या फिर उसके अलावा what are the other, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि and then you can list, I'm going to list the other investigations that you can do. ठीक है, तो ये भी आप लिस्ट कर सकते हैं उसके नीचे. आपने डॉपलर करा लिया, आपने वीनोग्राफी करा ली, उसके अलावा now she has delivered. You can also do a D dimer, that can also help you out.
ठीक है, क्लॉटिंग प्रोफाइल करवाएं, डी डाइमर करवाएं। जब प्रेगनेंसी के अंदर आप डी डाइमर नहीं करा सकते, बट आफ्टर शी गिव्स बर्थ यू कैन गो अहेड एंड डू द डी डाइमर, ठीक है। उसके अलावा यू कैन डू एन ईसीजी, यू कैन डू अ चेस्ट एक्सरे। फिर अगर आप पल्मोनरी एम्बुलेंस को सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप वीक्यू स्कैन करा सकते हैं टू चेक फॉर दैट एज वेल, ठीक है। एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ABGs वगैरह। तो द स्पेसिफिक वन फॉर दिस इज यू वांट टू चेक फॉर द DVT, तो उसके लिए आप ये डॉपलर कराएंगे, ठीक है, या फिर विनोग्राफी। प्रेगनेंसी में ना डी डाइमर की ना वैल्यू नहीं सही आती, तो उससे आपको कुछ पता नहीं चलता है। डी डाइमर प्रेगनेंसी में वैसे भी एलिवेटेड हो सकता है, इसलिए नहीं कराते। जब एक दफा वो उसने डिलीवर कर दिया, उसके बाद डी डाइमर आपको रिजल्ट दे सकता है। ओके अच्छा, आप क्या उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, तो मतलब आप उसको वारफरिन दे सकते हैं, लेकिन बिकॉज वारफरिन का इंस्टेंट एक्शन नहीं होता, तो इनिशियली क्या करते हैं, आप लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं। उसके साथ फिर जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपने मेंटेन करनी है, वारफरिन के साथ करनी है, और INR 2 to 3 में रखना है। वही मेडिसिन वाली इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके अलावा यू कैन गिव ग्रेजुएटेड इलास्टिक स्टॉकिंग्स एज वेल, और ये 2 साल तक आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर द वुमन गिव्स बर्थ, आप जो नॉर्मल मेडिकेशन जो मेडिसिन वाली है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज वेरी ओके, so we're done with this one, and somebody has asked के क्वेश्चन नंबर ये जो 6C है इसको रिपीट कर दिया जाए। ओके, CTG है, हाउ वुड यू मैनेज हर फर्दर। इसकी सी सेक्शन होगी, तो आपने जो सी सेक्शन के प्री रिक्विजिट्स हैं वो सारे पूरे करने हैं, ठीक है। एडमिट द पेशेंट और सी सेक्शन करना है, तो उसकी जो प्रेपरेशन है सारी, ठीक है। एनेस्थीसिया देना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है, ऑल ऑफ दैट जो लिस्ट के अंदर। फिर व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्रोग्रेस, इट वाज मैल प्रेजेंटेशन, और इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक यू कैन नॉट ब्राउ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्लासिक सिनेरियो ब्राउ प्रेजेंटेशन का, ओके। Let's move forward. Oh, we're done with this paper. Nice. I always forget K OBS में 7 questions हैं. ठीक है. Let's move to the next paper then. कौन सा आ गया?